minus 128 to plus 127. This is the range for your character variable. Similar way, if you are using the int integer, if you are taking int as integer, integer takes 2 bytes in memory. Integer takes 2 bytes in memory, and 2 bytes equals to how many bits? You are having 16 bits. So I am writing here as 16 bits. Okay, so 16 bits is of integer type, but int takes 2 bytes for the 16-bit compiler and 4 bytes for 32-bit compiler and 8 bytes for 64-bit compiler. So I am calculating for the 16-bit compilers. So you can write n is equals to 16. So same way you can write minus of 2 raised to power 16 minus 1, 16 minus 1 to 2 raised to power 16 minus 1, and then whole minus 1. So after solving this, you can write minus 2 raised to power 15 to 2 raised to power 15 minus 1. So you can write 2 raised to power 15 minus 1. So after solving 2 raised to power 15, what is the range? You are having minus 32768 to plus 32767 plus 32767. This is the range for integer data type with 16-bit compiler. Minus 32768 to plus 32767. Okay, so we have discussed two ranges. One is for character variable and one is for integer data type. Integer takes 16 bits for 2-byte compiler. 2 byte means 16-bit compiler. And if you comparing it as 4 bytes, then it takes 32 bits, and for 32 bits you can again use the same formula. This is the formula for calculating the range of character data type, integer data type, long data type. All integer type data type you can calculate by using this formula. Is it? So this is for signed data type, signed character, signed int, signed long, signed type data type you can calculate. And for unsigned, you can use the formula 0 to 2 raised to power and then whole minus 1. Okay, so if I consider this character as unsigned, so what is the range? You can write 0 to 2 raised to power 8 and then whole minus 1. So 2 raised to power 8 is what? 256. So you can write 0 to 255. 256 minus 1 equals to 255. So this is the range for unsigned character. 0 to 255 is the range for unsigned character. For signed character, you can have minus 128 to plus 127. So I think this formula gets clear to all of you. For signed numbers, you can use the formula minus 2 raised to power n minus 1 to plus 2 raised to power n minus 1 then whole minus 1. And for unsigned case, you can use the formula 0 to 2 raised to power n minus 1. This is the for unsigned case. So we have discussed all these data types. So you can calculate only the integer data types ranges by using these two formulas, either this formula for signed number and this formula for unsigned numbers. Okay, so we are taking one example how these data types you can use in the programming languages. So I'm just writing one example here. In Turbo C you can use, and other software you can also use. So first we can just discuss what are the software you can use for writing this programs in the C programming language. So software used for writing C programs. First you can use Turbo C.
This is 16 bits compiler included in the Turbo C editor, and one is the Dev CPP of 32-bit compiler. You can also use NetBeans, you can use Eclipse, Visual Studio Code. All these you can use. Atom you can also use. These are the softwares you can use for writing the C programs. So first I'm just taking the example into the Turbo C, how these variables you can use into the programming part. So you can just open file in Turbo C and then new. I'm just removing the previous program from here, and then I want to save by typing F2 key or pressing F2 key, and I want to save this file as wae1.c. Okay. So before starting the program, you can first include the header file. So I'm just writing hash include stdio.h. So hash include is the preprocessor directive which is used to include the predefined header files. So header file is what? It is the file which includes the predefined C library function. So here I have included one header file as stdio.h. So std stands for standard input output, .h stands for header file. So .h is the extension. .h is what? It is the extension for the header file. Similar, I have written one .c here. .c is the extension for C program file. .c is the extension for C program file, and wae1 is the file name. Okay. So second header file I can also include here, hash include conio.h for console input output header file. So for writing the command you can use single line command. So stdio.h stands for standard input output header file, standard input output header file, and for conio.h you can use console input output header file. So these file is required for writing the C programs. Okay, so I am just writing one line here, void main. I will just tell what is this. So here you can just use one variable of integer type, and I am writing variable a, and I will give the value as 10. Now I want to print the size for this variable. So size of int is equals to %d, comma size of is the data type which is used to find the size of your integer data type, and you can also use size of a is equals to %d, comma size of then a, and you can use get ch here. So get ch means get a character from the console screen. Console means your monitor oblique keyboard. These comes into the category of console. Okay. So here I am just explaining each of the keywords one by one. So for writing multi-line command you can use these symbols, forward slash star and then star then forward slash. Okay. So here void is what? It is the return type of main function. Main, it is the function which is the entry point of C program, and curly braces is the opening braces from where your program gets started, and then after you are writing one variable int. Int is what? It is the data type. It is the data type. A is what? It is the variable. It is the name of variable. Variable means it is used to store the number at particular location in
memory. This is the variable, and you have assigned value 10 into variable a. Printf is the function. It is used to get input from the, sorry, it is used to print the or print the value. For that you can use the printf function. And for getch, it is used to take input as character, but on show on the console. You can get the values, but you didn't want to show on the console. Then you can use getch. Okay, so here you can see printf and scanf function comes from stdio.h header file, and one function we can use clr scr and then getch and getche. These are the functions comes from conio.h header file. Okay, so I want to save this file with F2 key. So whatever keyword I have written, whatever thing I have written here, I have just explained into the commented section. So printf is what? It is the function which is used to print something on the console screen. Scanf function we will discuss later. Scanf means you can take the inputs from the user also. CLR SCR is your functions for clearing the screen. Getch is also function to get the characters. Getche is a function which get the character with echoing mode. Okay, void is the return type of the main function, means you are not returning any value to the operating system. You know size of int or then size of a, what it comes? We are using the 16-bit compiler, so it will just display the size of int is 2 and size of a equals to 2 because it is of 2 bytes long. So I am just telling where all these things gets involved into the Turbo C. So you can just open file help and then index, and in there you can just use limit.h header file, limits.h header file. In limits.h header file there are number of constants. Okay, and all these data types are defined with these constants. Suppose if you are having chr underscore bit, this is for 8. Character underscore max, this will represent the maximum range of the character. Character underscore min, this will represent the minimum range of the character. Int max, maximum range, minimum range, long maximum range or minimum range. These all are the macro constant which is defined into the limits.h header file. So I will just show what are the ranges of the data type which I have discussed in the slide also. So I am writing one simple program by using limit.h header files. So limits.h header file, what it show? It show the limits of the data types. Limits means the range of the data type. So I'm just writing one simple example. Other than you can also write these. Okay. So for this you can write new, and here I just remove this predefined code. So you can write hash include stdi.h and hash include conio.h, and one header file is also you can include hash include limits.h, hash include limits.h header file. After that you can write void main. In that you can write printf. Suppose you want to print the character underscore min value is equals to %d, and here you can write chr underscore min. So what is the minimum value and what is the maximum value you can find? So character underscore max is equals to %d, and you can write chr underscore max. Okay, and then you can write getch. Before that you can use clr scr for clearing the screen. So save this file by writing wae2.c. Okay, so chr underscore min and chr underscore max are the macro constant which is defined into the limit.h header file, and it is used to find the range of the particular character data type. So if you are running this program by typing control F9, so what is the minimum range? -128, and what is the maximum range? 127.
And if you combine these two value, it comes from minus 128 to plus 127. So you can again check the output. So CHR underscore min equals to minus 128 and CHR underscore max equals to plus 127. So this is the range for your character variable. Similar way, you can use the macro constant for printing the integer value. So you can write int underscore min is equals to percentage d, int underscore min, and printf int underscore max is equals to percentage d, int underscore max. Similar way, you can also print all the data types. I will just show what is the file name, limit.h. So here you can see what is the range of int underscore min, minus 32768 to plus 32767. So if you can write here backslash n for new line character. So backslash n, and backslash n. So you can run this program. So int underscore minimum you are having minus 32768, or int underscore maximum you are having plus 32767. This is the range for your integer variable. Similar way, you can use long min and long maximum. So you can run this program. Okay, just I show what is the file. You can just use limits.h, and all these constants you have to check. Okay, all these constants you have to check by writing the program. This is your assignment. I have write one character underscore max or character underscore min value, and int underscore max or int underscore minimum value. Now you have to print what is the long underscore max value, long underscore min, s character underscore max, s character underscore min, all these into the category of preprocessor constants. Okay, so you have to print all these by using the program. So everything is clear regarding data types. No? So I have written some examples for the data types, and you can also print these ranges, and you have to remember all these ranges because this is necessary for solving the problems of numeric type as MCQ. Okay, and where the float double or long double is defined, you can just move to the help menu, help, and then index, and here. So float.h is the header file. Float.h is the header file which is used to find the floating values. So here you can just use float.h header file, and here some of the constant you can use. Just a minute. FLOAT, float you can use. So here you can see the ranges of the float double or long double. Float takes 32 bits. 32 bits means 4 byte, and double takes 64 bits means 8 byte. Sorry, 8 byte, and long double takes 80 bits means 10 bytes. And these ranges you can remember. You have to remember these ranges. Okay. So I show the file where these ranges are defined into the Turbo C. So float double or long double is defined into the float, and all the integer ranges are defined into the limits.h header file. Okay, so all these constants you can use. Getting? Now next we are discussing about the input and outputs. So for taking the input from the user, you can use the scanf function. So scanf is used to read the values from the user, and for printing the values you can use the printf function. So printf is used to print the values on the screen. So I'm just taking one example for taking input and then output with some example. Okay, so I'm just closing this window and file, then you can open new, and you can also run this program without including the header file. This is also the interview question. Is without header file you can run the program in Turbo C. So you can run the program without using header file also. So I just save this file as wae3.c. So I just start the program from main function,
and here I declare one variable of integer type a and b, and then after you can use CLR SCR, then printf. I'm just writing one message, enter any two numbers, and then scanf you can write %d, %d. %d is for integer number, so integer takes the format space. So okay, I have just given one question to all of you. You have to solve first, then I can just move. Okay, so if I write a is equals to 0 1 5 and b is equals to 0 x 1 a and c is equals to, I write 1 5, then clear screen, and then simply I write printf what is the value of a using %d, and b is equals to %d, and c is equals to %d. Now you can just print a, b, and then c. And to print the address of variable, you can just use a is equals to %u. For printing the address, you can use the %u, and b is equals to %u, and c is equals to %u. So for printing the address, you can write address of a, address of b, and address of c. So you have to tell what is the output of this particular problem for the first printf statement, not the second one. If you understand what is the question, I have written one variable a is equals to 0 1 5. This comes into the category of data types. Okay, so a is equals to 0 1 5 and b is equals to 0 x 1 a and c is equals to 1 5. According to you, what will be the value of a, b, and then c? (15, 26, and then 15). Okay, so first question's answer. So sorry, first value a is 15. Is it? I have written 0 1 5, 0 1 5. So 0 is basically used for octal number, and 0x is for hexadecimal number, and you have to convert octal to decimal, and this hexadecimal to decimal. Okay, so 26 is the correct one. Someone has written answer as sorry 17, UCC 040 have written answer 15, 26, 15. So C value is correct, B value is also correct, but A's answer is not correct. You have written 15. So I'm just running the program and you can check what is the output. You can get A is equals to 13. So 13, how it comes? You have to convert octal number into the decimal part. Okay, so 005 have given the correct answer 13, 26, and then 15. Okay, so backslash n, and then you can check what is the output of the addresses. So A is having the 65524, B is having the 65522, and C is equals to 65520. Okay. So variable C gets the memory first, then variable B gets the memory, and then A gets the memory as 65524. So C is having the first memory allocated to the system. So what is the value? 65520, and B is having 65522. So what is the difference between B and C? 2 bytes. So this compile is of 2 byte long. Okay. Now again I'm just giving another question. If I write A is equals to 10, B is equals to 20, C is equals to 30, and D is equals to 40. Okay, and I want to print the value. As percentage D, percentage D, percentage D, percentage D, without any format specifier. Sorry, without any variables name. So according to you, what will be the result? If I write A is equals to 10, B is equals to 20, C is equals to 30, and D equals to 40.
Just tell the output. Garbage value? No. Zero 005 has given the answer wrong. Nothing. It's wrong. Any other? Compilation errors, nothing. No. All these are wrong answer. It will print something. Okay. It's also wrong. 10, 20, 30, 40. It's also wrong. 0 to all wrong. 13, 26, 15 wrong. Okay. I'm just telling what is the answer. It will print the values into the reverse order. Just write Control F9 and you can get the result as 40, 30, 20 and 10. Why this results into the reverse order? Because all variables get stored into the stack. Okay. So how the stack values get stored into the part? I just show. This is your stack and you have declared one variable as A. Then after you can declare variable as B. Then you have declared variable as C. And this variable declare as D. Okay. So you have assigned value A is equals to 10 here. B is equals to 20. C is equals to 30. And D is equals to 40. Okay. And if you are not writing the variable name, then it will just pop the top value first. So it will print first 40. Then after it will move to the value of C 30. Then it will print 20. And then you can get the value as 10. So it will print into the reverse order. So correct answer for this question is 40, 30, 20 and then 10. Okay. Now suppose if I write the variable's name as A, B, C, D, and then you can run the program, you can get the value as 10, 20, 30 and then 40. If you are writing the variable's name, then same order's value get printed. But if you didn't write the variable's name, then it will print into the reverse order. Okay. So you can see here 40, 30, 20 and 10, 10. Is this clear? Just type yes or no in chat box. Is this clear? Again, I am writing some other example for the data type. Okay. So you have to tell what is the result. If I write character ch is equals to 127 and I am incrementing ch value with 3. Okay. And I want to print the variable's value. So you can write ch is equals to percentage d comma ch. According to you, what will be the result? I have written character ch equals to 127 and I have incremented ch by 3 and we are just printing the value of ch. Minus 126, it is out of range of characters, so garbage value. It's not garbage value. Minus 126. Minus 126. I'm just showing what is the result. Okay. Then we can discuss. So character is equals to minus 126. It comes into the reverse order. This is the correct one. Okay. So 127. You are having the cyclic in nature. All variables come into cyclic nature. Just a minute, I'll just showing. All these come into the cyclic nature, and character starts from 0, and maximum value is plus 127. And if you increment by 1, so its value comes as minus 120.
8, and if you are incrementing by 2, it comes as minus 127, and if you are incrementing by 3, it comes as minus 126. Okay. So we have initiated a ch variable with the maximum value ch equals to 127. If you increment by 1, you are having minus 128, and if you are incrementing by 2, you are having minus 127, and if you are incrementing by 3, you are having value as minus 126. So minus 126 is the correct one. Okay. So answer 005, 064 and 118 and then 075 has given the correct answer. Okay. Now again I am just writing another example for the data type. Okay. So suppose if I write unsigned integer x is equals to minus 2, and then I just print the value of x with percentage u. So what is the output of this question? $253 is the wrong. Two wrong. I have written x equals to minus 2 and unsigned. Unsigned is the data type. Unsigned int is the data type. Unsigned means you are having the positive values. The range are the positive. As I have told, what is the range of unsigned integer? 0 to 65535. I have told. What is the range of unsigned integer? Unsigned int is having the range as 0 to 65535. So you are saying 65534. I am just running the program. You can have the result 65534 is the correct one, because it will move into the cyclic nature. Okay. So if you write this here, if I write unsigned range, so you can see the cyclic property as we are having the 0 and maximum value is 65535. 655. So 65535 is the maximum. Okay. And 65534. So if you write minus 2, if you are decrementing 0 with minus 1, then 65534, and minus 2 means you are having 65534, means you are moving into the anti-clockwise direction. So 65534 is the correct one. Okay, for the unsigned range. So this is the correct one, 65534. Okay. Now, can anybody of you tell? I am just saying one assignment here for the data types and all. Write a program to swap the two values without using arithmetic operator and without using temporary variable. What is the assignment? You have to think the logic about swapping the two numbers without using arithmetic operators. In case of arithmetic operator, you are having plus, minus, multiply, divide और remainder. These are the arithmetic operators. और ये ऑपरेटर्स आपको यूज नहीं करना है, और एक टेम्पररी वेरिएबल भी आपको यूज नहीं करना है. आपको क्या करना है? आपको दो वेरिएबल लेना है, इंटीजर a, b, और इसी के साथ में आपको दो नंबर को आपस में स्वैप करना है. ओके. तो उसके लिए लॉजिक, केवल लॉजिक आपको लिखना है चैट बॉक्स पे. आई एम जस्ट राइटिंग सिंपल प्रोग्राम, बट यू हैव टू थिंक कि क्या हो सकता है इसका आउटपुट और कैसे प्रोग्राम बनेगा. एंटर एनी टू नंबर्स. आई एम राइटिंग scanf function here, %d and %d inverted comma address of a comma address of b, and
here you have to write the logic for swapping two numbers without using temporary variable or without using arithmetic operator. Zero zero four, you have written x equals to x plus y, y is equals to x minus y, x equals to x minus y. So you have used the arithmetic operators. I have given the question, you didn't use the arithmetic operator and not the temporary variable. Think about it. This is wrong. This is for swapping two numbers without using temporary variable. You have written correctly, but I have asked how to swap the two numbers without using arithmetic operator और विदाउट यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल. अर्थमेटिक ऑपरेटर का भी यूज नहीं करना, टेम्पररी वेरिएबल का भी यूज नहीं करना. राइट द लॉजिक फॉर स्वेपिंग and then after I write some print statement. A is equals to percentage d and b is equals to percentage d comma a comma b. You tell the logic. Okay. Swapping printf before swapping a is equals to percentage d, b is equals to so one candidate has tell the answer as a is equals to a XOR b and b is equals to a XOR b and a is equals to a XOR b. This is the correct one. Okay, so if I write the program and I have input a equals to 10 and b equals to 20, so before swapping a equals to 10, b equals to 20, and after swapping a equals to 20 and b equals to 10, this is the correct one. This logic is correct. Now I want to change the question. Okay, you have to swap the two numbers without using arithmetic operator and without using temporary variable in a single statement. In a single statement, I have changed the question. Okay, 118 has given the answer correctly. 005 again correct. 009 have tailed XOR. 040 is the correct one. So if I write A, B, and you can check what is the output of this code. If I write A is equals to 100 and B equals to 200, before swapping A equals to 100 and B equals to 200, and after swapping A equals to 200 and B equals to 100. Okay, so this logic is correct, but I have changed the question. You have to swap the numbers without using arithmetic operator and without using temp variable in a single statement. इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या करा है, 3 स्टेटमेंट्स लिखे हैं. A is equals to A XOR B and B is equals to A XOR B and A is equals to A XOR B. Okay, क्योंकि every statement will terminate with the semicolon और every statement will end with the semicolon. आपको क्या करना है, इन तीनों स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन क्या है कि आपको सिंगल स्टेटमेंट के अंदर दो नंबर को स्वैप करना है. कैसे करेंगे? यहां पर अपन 3 स्टेटमेंट लिखे हैं. Any idea? You have written x is equals to plus x plus y equals to y. No, this is wrong. This will just print the value of x and y, and this not works into this x a XOR a x XOR y. Yes, last one, 143 has given the correct answer. So you can write this statement as, I just comment these all 3 lines. Okay. And you can write in a single statement
XOR equals to B, XOR equals to A, XOR equals to B. This is for the single statement. Okay, so I'm just executing this program and then check the answer. 100 and 200. Before swapping A equals to 100 and B equals to 200, and after swapping A equals to 200 and B equals to 100. This is the correct one. Okay, so in single statement you can write the syntax this way, and in multiple statement you can also write A XOR equals to B XOR equals to A XOR equals to B. दिस इज द करेक्ट ठीक है, तो आप इसको सिंगल स्टेटमेंट में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे अपन कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर. ओके, सो यू कैन ऑल्सो टेल वन अनदर क्वेश्चन. .c void main printf percentage d. If I write -4 remainder by -3 and printf percentage d -4 remainder by +3, printf percentage d 4 remainder by -3 and printf percentage d 4 remainder by +3. Just tell what is the output of this question, and again I am writing another question beyond this. So 4 divided by 3, sorry, -4 divided by -3, -4 divided by +3, percentage d 4 divided by -3 and 4 divided by 3. You have to tell what is the correct answer for this question individually. We have used one divide operator and one remainder operator. To clear the screen, we are just writing CLR SCR. Okay, just tell the answer of this question. Here we are using one remainder operator and another one divide operator. This is the remainder operator and this one is the division operator. Division operator. So what is the output of this question? You are telling 1 2 2 1 4 remainder. No, this is wrong. 005 has given the answer. This is wrong. 1 2 2 1 is wrong. For divide operation, it is correct. 0 1 2 has given the correct answer. -1, sorry, 1 -1 -1 and then +1. Divide answer is correct for 0 1 2. Any other?
सभी ने आंसर गलत दिया है अभी तक जितनों ने अभी करा है। एक ने केवल डिवाइड का आंसर सही दिया है, 012 जो रोल नंबर है। विद इन 2 मिनट्स आप जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर। 4 रिमाइंडर -1 -1 1 and 1, and for divide operation you are having 1 -1 -1 and then 1. So 040 has given the right answer. Okay, I'm just telling the what is the rule. According to that rule you can solve the problem. Okay, so for remainder operator we are having one rule here as. So if you write positive number, positive remainder by positive, your result will be in positive. And if you write positive remainder by negative, अगर आप पॉजिटिव में नेगेटिव का रिमाइंडर निकालते हैं तो भी रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। अगर आप नेगेटिव के अंदर पॉजिटिव से रिमाइंडर निकालेंगे तो नंबर नेगेटिव आएगा, और अगर आपने नेगेटिव नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर का रिमाइंडर निकाला तो भी रिजल्ट आपके पास में नेगेटिव में आएगा। ये रूल आपके पास में रिमाइंडर के लिए। तो इस रूल से आपको क्या पता चल रहा है? साइन विल डिपेंड अपॉन द न्यूमरेटर पार्ट पे डिपेंड करता है। ओके, तो 4 में अगर आप 3 का रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर आपके पास में 4 रिमाइंडर बाय 3 होता है तब +1 आएगा, और अगर आपके पास में -4 रिमाइंडर बाय +3 होगा तो रिजल्ट -1 आएगा। अगर आप 4 रिमाइंडर बाय -3 से निकालेंगे तो रिजल्ट आपके पास में +1 आएगा, और -4 रिमाइंडर बाय -3 से अगर आप निकालेंगे तब भी रिजल्ट -1 आएगा। ये तो रिमाइंडर रूल हो गया। अब डिवीजन रूल आपके पास में सिंपल जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिव नंबर को अगर आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव तो रिजल्ट आपके पास में नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव रिजल्ट विल बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। So these are the rule for the remainder and division operation rule. Okay, सभी को क्लियर है ये रिजल्ट? सो 1 -1 1 -1 ये तो आ गया रिमाइंडर के लिए, और डिवीजन के लिए ये आपने देख लिया होगा। आप रन करके देख लीजिए इसको। This is your answer. I just write \new line, \new, and \new. Control F9. Just a minute. You can check your output. Okay. So for remainder -1 -1 1 1. -1 -1 1 1 for remainder is correct, and for division 1 -1 -1 or 1. Okay, so here you can just also write for differentiating printf the result of division operation. You can write \n. Run this program and you can check 1 -1 -1 1. This is the answer for your program. Okay, so I think ये सभी को क्लियर है, ये रिजल्ट सभी को क्लियर है? अगर नहीं है तो पूछ लीजिए आप। अगर सभी को क्लियर है तो आप यस लिख दीजिए चैट बॉक्स पे। Okay, so again I am just writing some another question. You have to tell what is the result. So file, then new, and you can save this file as WAE 6.c and void main. I have written one example here, CLR SCR, then printf %d, and then printf
then excellence. What is the output of this code? Just tell. I have written printf, then excellence, and then outside में आपको लिखा है परसेंटेज डी. आपके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा? 10 10 10 10 10 10 10 10 तो सही है, लेकिन ये प्रिंट एफ भी तो करेगा ना. प्रिंट एफ में आपने लिखा प्रिंट एफ एक्सलेंस, तो प्रिंट एफ एक्सलेंस तो करेगा ही करेगा ना. तो एक्सलेंस 10 इज द करेक्ट वन, नॉट 10. सिंगल 10 आपका रिजल्ट सही नहीं होगा. एक्सलेंस 10 है वो सही होगा. 111 ने सही आंसर दिया है इसका. तो मैं रन करके दिखा देता हूं आपको. आंसर आएगा एक्सलेंस 10. एक्सलेंस 10 इज द करेक्ट वन. ओके, so printf will print the value and printf will return integer value what gets printed on the console screen. Okay, so excellence gets printed on the console screen, or printf will return total number of characters printed on the console screen. Okay, this is the correct one. Now again I am writing some other question. So file, then new, void main, printf percentage d scanf function, then percentage d inverted comma address of a, address of b, and here I return one variable a comma b. Okay, so tell what is the correct answer for this question. I'm just saving this file as wea7.c. just tell. Okay, this is correct one. Okay, so scanf function will take input first. So what is the correct answer? This will print 2. So whatever is written by the scanf function, it will return how many number of inputs you have taken from the console screen. This will printed by the printf function. So 059 and 064 has given the correct answer. Okay, so now I'm just talking about the scope of the variables, and then you have to tell what is the output of this question. So here, I just write void main, and here I have declared one variable as integer a, and inside here you can write integer b, and here I have created one block. Here I write integer c is equals to 30. Okay, and in here I return 20, and after that I write printf percentage, a is equals to percentage d, b is equals to percentage d, and c is equals to percentage d, comma a, comma b, comma c. So according to you, what will be the result? I am just telling this is your block variable, this is your block variable, and this one is your local variable, and this one is your global variable. Global variable. Variable means the value can be changed at runtime. Okay, and constant means the value remains same. So here 3 type of scope rules available in C language. I'm just telling the logic. Local variables are defined inside the function. Local variables are those variables which are defined into the function, and block variables are those function which is defined into the block, and global variables are those variable which is defined before the main function, and its scope is throughout the program. यानी जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में होगा, जो लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप केवल इस मेन फंक्शन के लिए रहेगा, जो ब्लॉक वेरिएबल है उसका स्कोप केवल इस लास्ट कर्ली ब्रेसेस तक रहेगा, जो कर्ली ब्रेसेस है यहाँ तक रहेगा. उसके बाद में मैंने प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखा है और इसमें एबीसी की वैल्यू प्रिंट करती है, एंड यहाँ से आपको गेट केस करके इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है. तो सभी कह रहे हैं कि कुछ एरर आएगी इसके अंदर, है ना.
error for C will give error for C as undeclared variable error. 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 किसी का कोई आंसर आ रहा है क्या, या सभी की एरर आ रही है? Error for C will give error for C as undeclared variable. I have declared C variable as integer type. Error. ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ एक बार, है ना? तो मैं कंट्रोल F9 से मैंने रन करा, एरर आ रहा है कि C is assigned a value that is never used. ठीक है, तो इस एरर आ रही है C वेरिएबल के लिए. ओके, अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ C इज इक्वल टू %d, C, और यहाँ से मैं C वेरिएबल को हटा देता हूँ इस वाले ब्लॉक से, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? क्वेश्चन को चेंज करें, उसमें C के अंदर एरर आ रही है. ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? थर्टी, 0 और 20. 30 A की वैल्यू 0 और B की वैल्यू आपके पास में 20. ओके, so 075 have given the correct answer. So 30, 0 and then 20 is the correct one. So backslash new line. So here you can check, just a minute. I have written one clear screen here. You can check the output. So final result, C is equals to 30, A is equals to 0 and B equals to 20. This is the correct one. So 075 has given the correct answer. 75 ने सही आंसर दिया है. C की वैल्यू 30 आएगी, A की वैल्यू 0 एंड B की वैल्यू 20. ये कैसे आई है मैं बताता हूँ आपको. जो यहाँ पर आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करा है, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करा है यहाँ पर. ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जो मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर होता है. एंड ग्लोबल वेरिएबल्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0. अगर ग्लोबल वेरिएबल को आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. लोकल वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड द मेन फंक्शन, या जो भी फंक्शन होता है उसके अंदर डिफाइन होता है, इनसाइड द फंक्शन, एंड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज गार्बेज. अगर लोकल वेरिएबल को आप असाइन नहीं करते हैं कोई वैल्यू तो गार्बेज वैल्यू होती है. ब्लॉक वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड द ब्लॉक, एंड इन सी block is created by using curly braces, opening curly braces and closing curly braces. तो स्कोप का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम है उसका यानी एग्जिस्टेंस कहां तक है, उस वेरिएबल का एग्जिस्टेंस कहां तक है, वो किसको इंडिकेट करता है? स्कोप ऑफ द वेरिएबल को इंडिकेट करता है. तो अगर आप स्कोप ऑफ वेरिएबल की बात करते हैं तो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप कहां होता है? थ्रू आउट द प्रोग्राम. ठीक है, इसका जो स्कोप होता है वो कहां होता है? थ्रू आउट द प्रोग्राम. लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है वो इनसाइड द फंक्शन. सॉरी, ब्लॉक वेरिएबल इनसाइड द ब्लॉक. ठीक है, ये एक पर्सन ने सही आंसर दिया है 30, 0, 20. ओके, तो इसी के ऊपर बेस में एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है. ठीक है, तो यहाँ पर जो C वेरिएबल और ब्लॉक वेरिएबल है उसका स्कोप केवल इस कर्ली ब्रेसेस तक है. B वेरिएबल का स्कोप केवल इस कर्ली ब्रेसेस तक है, और A वेरिएबल को आप दूसरे फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं. वो अभी अपन फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या होता है. ठीक है, तो मैं एक नया क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर. फाइल एंड न्यू. Here I write one variable as integer A. Integer A is equals to 10. CLR SCR plus A
curly braces, integer a is equals to 20 plus a, then plus a, then printf block a is equals to percentage d, a की वैल्यू आपको प्रिंट करना है और इनसाइड ब्लॉक आपको इनसाइड ब्लॉक इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ए की वैल्यू आपको प्रिंट करनी। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम, इसका आंसर आपको बताना है। A8.c प्रोग्राम को आप कंप्यूटर पे टाइप करके आंसर मत बताइएगा, आपको खुद से सोच के आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 2% हैज गिवन द आंसर 21 and 12, 075 और 118। So 21 and then 12, 20, 21, then 10, 11, 12. So if I write, you are just executing the program and you can get output as a equals to 12, inside block 21. So 21 and 12 is the correct answer. So 040 and 140 and 012 and 117 and 118. 5% has given the correct answer. This is the correct one. Okay, so this will represent the scope of the variable, कि आपके पास में प्रोग्राम का स्कोप क्या होगा। वेरिएबल का स्कोप प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, वो स्कोप ऑफ द प्रोग्राम को इंडिकेट करता है। ओके, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस का बेसिक मीन क्या होता है कि आपके लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना, दैट इज नोन एज फंक्शन। यानी कि यूनिट ऑफ द टास्क को परफॉर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करते हैं। यूनिट ऑफ द टास्क परफॉर्म करने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक लार्ज प्रॉब्लम है, उस लार्ज प्रॉब्लम को अब हमें डिवाइड करना है 10 स्टूडेंट के बीच में, तो वो अलग अलग फंक्शंस है वो राइट कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, और उसको फिर अपन कंबाइन कर सकते हैं। तो स्मॉल मॉड्यूल्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं एक लार्ज प्रॉब्लम के साथ में, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। तो अगर सी में आपको फंक्शंस बनाना है तो फंक्शंस का सिंटेक्स होता क्या है वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद में अपन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो फंक्शंस टाइप्स की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट होता है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। सेकेंड वन फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। थर्ड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। And fourth one function with argument and with return type. And fifth one call by value and call by address or reference. And sixth one is the recursive function. ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड अपन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स भी आपको देंगे, आपको असाइनमेंट्स भी करना है और उन असाइनमेंट्स को आपको कल तक सबमिट भी करना है बिफोर क्लास। ठीक है, तो वो असाइनमेंट अपन डिस्कस कर लेंगे। तो फंक्शन टाइप्स का मतलब है कि फंक्शन को आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, उसके अलग अलग टाइप आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो जब भी आप फंक्शन को लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है रिटर्न टाइप। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है फंक्शन का, उसके बाद में फंक्शन का नेम राइट करना पड़ता है, उसके बाद में फंक्शन का जो भी आपके पास डेटा टाइप है वो लिखते हैं आर्ग्यूमेंट के अंदर, और देन वेरिएबल का नेम लिखते हैं। ये आपका फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहलाता है। दिस इज नोन एज प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, सबसे फर्स्ट व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। सेकेंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। How many parameter it takes? How many parameters it takes? ठीक है, ये 3 थिंग्स आपके पास में प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के अंदर आती है। तो अगर मैं ये वाला जो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन की बात करता हूँ, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, तो आर्ग्यूमेंट नहीं है और रिटर्न टाइप नहीं है तो आप लिखेंगे वॉइड। फंक्शन का नाम लिखा मैंने ऐड, आर्ग्यूमेंट भी कुछ नहीं पास करना तो आप लिखेंगे वॉइड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो इस तरह से आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर करेंगे। ओके, रिटर्न टाइप में अपन ने क्या लिखा है, वॉइड।
यानी ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन इसको कॉल करता है उसको। ऐड आपके पास में फंक्शन का नेम है, और वॉइड क्या है आपके पास में, आर्ग्यूमेंट जो अपन ने पास नहीं करा है। ओके, so second one is function with argument and without return type. What is the prototype of this one? With argument and without return type. So void is the return type. Function name I write sub, argument I take integer comma integer. Third case, function without argument and with return type. आर्ग्यूमेंट आपको नहीं भेजना, रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप मैंने लिया इंटीजर, फंक्शन का नेम लिया मैंने मल्टीप्लाई, आर्ग्यूमेंट सप्लाई नहीं करना है तो वॉइड। And fourth case, function with argument and with return type. So in this case, if I write integer and function name is divide, I have taken argument integer and integer. This is for function with argument and with return type. Argument भी आपने supply करा है और return type भी आपने integer लिखा है। इसी टाइप से आपके पास में कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस का जो फंक्शन डिक्लेरेशन वो अपन लिख लेते हैं। void फंक्शन का नेम लिखा मैंने swap v, इसमें आप 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, ये तो क्या कॉल बाय वैल्यू। और कॉल बाय एड्रेस की बात करते हैं तो swap a, इसमें अपन कुछ पॉइंटर टाइप के वेरिएबल यहाँ से पास करेंगे, हो गया कॉल बाय एड्रेस। एंड रिकर्सिव फंक्शन का बेसिक मीन क्या होता है, ए फंक्शन विच कॉल itself number of times till the condition satisfied. तो ये आपका रिकर्सिव फंक्शंस का पार्ट होगा। तो टोटल बेसिकली अपन बात कर सकते हैं कि जो फंक्शन है दो कैटेगरी के अंदर डिफाइंड होता है। एक होता है स्टैंडर्ड इनबिल्ट फंक्शंस जो पहले से बने हुए फंक्शन है, जैसे प्रिंटफ, इसके अंदर मैथ लाइब्रेरी के अंदर आपके पास में पावर और एसक्यूआरटी फंक्शन है, वो आप यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड का मतलब जो आप खुद से डिफाइन करते हैं फंक्शन को, उसे अपन कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन की अपन ने कुछ टाइप से वो डिस्कस करिए कि अगर फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप है तो उसका सिंटेक्स आप सिंटेक्स फंक्शन का इस तरह से लिखेंगे, रिटर्न टाइप डिफाइन करना पड़ता है, फिर फंक्शन का नेम डिफाइन करना पड़ता है, फिर डेटा टाइप लिखना पड़ता है और फिर वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आपका लोकल पैरामीटर्स हो गया, और ये अपन ने इनकी प्रोटोटाइप डिक्लेयर करी है। ठीक है, इसके ऊपर बेस छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं और उसके बाद में अपन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस का एक्सेस करेंगे और उसका एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार के लिए एक छोटा इसी एक ही प्रोग्राम के अंदर में सारी चीजों को बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे void एक फंक्शन बनाना है ऐड, उसमें आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना। दूसरा एक सबट्रैक्ट के नाम से फंक्शन बनाया, उसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करना है। एक मैंने इंटीजर वैल्यू रिटर्न करी, रिमाइंडर फंक्शन बनाया, उसमें आर्ग्यूमेंट कुछ भी पास नहीं करना है। और एक फंक्शन बनाया डिवीजन, उसमें आपको इंटीजर कोमा इंटीजर वैल्यू लेनी है। और डबल इसकी क्या हो गई, रिटर्न टाइप। इस फाइल को अपन सेव कर देते हैं, WEA9.c। और फंक्शन अपन यहाँ पर क्रिएट करें। प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, वो अपन ने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर ऐड जो फंक्शन है उसको आप डायरेक्टली कॉल करेंगे, तो ऐड फंक्शन को कॉल करा, इसे अपन कहते हैं फंक्शन कॉलिंग पार्ट। ऐड और देन सेमीकोलन लगाते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग, जहां से फंक्शन होगा। अब इसकी डेफिनेशन राइट करनी है आपको, तो मैंने लिखा void add इज द फंक्शन, आर्ग्यूमेंट आपको कुछ भी सप्लाई नहीं करना, और सिंपल यहाँ पर आप 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, एंड देन printf sum इज इक्वल टू परसेंटेज b comma a plus b. Okay, so this is the definition for your add function. Definition for add function, ये अपन ने कमेंट लिख दिया। दूसरा फंक्शन अपना है सबट्रैक्ट का, उसमें मुझे 2 इनपुट लेना पड़ेगा, तो मैं लिखा इंटीजर a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। एंड यहाँ से आप सबट्रैक्ट फंक्शन कॉल करिए एंड देन a कोमा b को आप पास कर देंगे। तो इसके लिए आपको डेफिनेशन राइट करना है, तो डेफिनेशन राइट करिए void subtract इज द फंक्शन नेम एंड इंटीजर a कोमा इंटीजर b, और इसके अंदर आप सिंपल एक प्रिंटफ स्टेटमेंट राइट करेंगे, सबट्रैक्ट इज इक्वल टू परसेंटेज d कोमा a माइनस b। तो ये आपका सबट्रैक्ट का डेफिनेशन हो गया। थर्ड आपके पास में रिमाइंडर का जो केस है, तो रिमाइंडर में मुझे रिटर्न टाइप यूज करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर rem एक वेरिएबल ले लेता हूँ,
rem वेरिएबल के अंदर मैं रिमाइंडर फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ से और a कॉमा b पास करा और देन रिमाइंडर को यहाँ पर प्रिंट कर लूंगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू परसेंटेज d कॉमा rem एंड देन इसको अपन अप्लाई कर देते हैं बैकस्लैश न्यू लाइन। एंड एक लास्ट आपके पास में बच रहा है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए अपन को div फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसकी जो वैल्यू मुझे डबल वेरिएबल में कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा डबल div एंड यहाँ से आप div वेरिएबल को कलेक्ट कर लीजिए। div इज इक्वल टू div आपका फंक्शन है, उसमें आपको a कोमा b की वैल्यू पास करनी है एंड देन डिवीजन का रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट करना है परसेंटेज f फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए एंड देन div और इसको भी आप बैकस्लैश n कर देंगे एंड देन लास्ट में आप अप्लाई कर देंगे गेट ch एंड सेव दिस। उसके बाद में आपको रिमाइंडर का एक फंक्शन बनाना है, इंटीजर rem फंक्शन है, इसमें इंटीजर a कोमा इंटीजर b आपने पास करा और देन यहाँ से आप रिटर्न स्टेटमेंट राइट करेंगे a रिमाइंडर बाय b और एक फंक्शन अपन क्रिएट करते हैं डिवीजन के लिए, उसमें डबल आपको रिटर्न टाइप लेना है। div फंक्शन का नेम हो गया इंटीजर a कोमा इंटीजर b और यहाँ से आप रिटर्न कर देंगे a डिवाइडेड बाय b, बट एक नंबर को मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा डबल के अंदर, क्योंकि मुझे रिजल्ट किसमें चाहिए, डबल के अंदर चाहिए। तो टाइप कास्ट करने के लिए अपन ब्रैकेट के अंदर टाइप लिखेंगे। मेरा a वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, उसको मैंने फ्लोटिंग में कन्वर्ट करा और फ्लोटिंग में कन्वर्ट करके यहाँ से वैल्यू डबल के अंदर रिटर्न कर दी। तो ये चार फंक्शन की डेफिनेशन अपन ने यहाँ पर राइट करी है। ओके, जब भी आप फंक्शन को कॉल करते हैं मेन प्रोग्राम से आपको कॉल करना है और ये जो अपन ने ऊपर डिक्लेयर करा है इसे अपन कहते हैं प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया और ये आपके पास में मेन प्रोग्राम अपन यहाँ से स्टार्ट कर दिया। मेन प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और अलग अलग फंक्शन अपन ने कॉल कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन के अंदर जब भी आप फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं तो इन आर्गुमेंट को कहते हैं अपन एक्चुअल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। ओके, एंड इन द डेफिनेशन पार्ट if you are collecting some parameters in the function, these are known as formal parameter of the function. And formal parameter is what? It is the copy of actual parameter. फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? इट इज द कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। तो यहाँ पर अपन ने 4 फंक्शन डिफाइन करें और सारे टाइप्स अपन ने डिफाइन कर दिए। ये फंक्शन है जो आर्गुमेंट नहीं लेगा और रिटर्न टाइप भी नहीं लेगा, ऐड वाला जो फंक्शन है। सबट्रैक्ट फंक्शन विल टेक 2 आर्गुमेंट्स एज इंटीजर टाइप एंड इट विल डजंट रिटर्न एनी वैल्यू। रिमाइंडर फंक्शन टेक 1 रिटर्न टाइप एज इंटीजर और वॉइड आपके पास में आर्गुमेंट हो गया कि यानी आर्गुमेंट आप पास, रिमाइंडर में मुझे आर्गुमेंट पास नहीं करना है। तो आर्गुमेंट पास नहीं करना है तो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा रिमाइंडर, और रिटर्न टाइप है तो आपको रिमाइंडर वाला जो फंक्शन है उसमें आपको आर्गुमेंट नहीं सप्लाई करना है, आप हटा दीजिए इसको। और यहाँ पर आपको वेरिएबल a इज इक्वल टू 4 ले लिया और b इज इक्वल टू 3 लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये मेरा रिमाइंडर वाला केस हो गया। और डबल वाले केस में आपको रिटर्न टाइप और देन आर्गुमेंट दोनों लेने हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको अगर आप रन करते हैं तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, सम की वैल्यू 30 आ रही है, सब्ट्रैक्ट की वैल्यू -10 और डिवीजन आपके पास में आ रहा है 0.5, 0 0 0 0 0 यानी 5 0 आपके पास में लास्ट में लगी हुई आ रही है। अगर मैंने इसको परसेंटेज f से प्रिंट करा है तो 5 जीरोज आपको डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको परसेंटेज f की जगह परसेंटेज g लिखता हूं, परसेंटेज g इज व्हाट, इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फ्लोटिंग नंबर। परसेंटेज जी किसके लिए होता है? परसेंटेज जी इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग। तो जितने भी आपके पास में जीरोज है वो रिमूव हो जाएगी। आप रन करेंगे प्रोग्राम को तो आप आउटपुट देखिए, डिवीजन का रिजल्ट कितना आ गया, 0.5। ओके, तो परसेंटेज एफ और परसेंटेज जी के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया आपको। यहां पर मैं CLR SCR स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। अगर कोई भी डाउट है इस प्रोग्राम के अंदर तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैंने चारों फंक्शंस का टाइप एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। फंक्शन के जो टाइप्स है वो अपन ने क्या क्या डिस्कस करा है। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न टाइप, ये तो कौन सा हो गया, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप।
दूसरा मेरा कौन सा एग्जांपल है? दूसरा मेरा एग्जांपल है फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। थर्ड जो मेरा एग्जांपल वो किसका है? फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। फोर्थ जो मेरा केस है वो क्या है? फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। ये फोर केसेस अपन ने डिस्कस करें, ओके, और इनको इंडिविजुअली अपन ने कॉल करा है। फंक्शन कॉलिंग आपको हमेशा कहां से कॉल करनी है? मेन फंक्शन से करनी है। अपन कॉल इस फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, ओके। ऐड फंक्शन से मुझे सब्ट्रैक्ट को कॉल करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्ट से किसी और फंक्शन को कॉल करना है तो भी आप कर सकते हैं। रिमाइंडर कॉल करना है, डिवीजन को कॉल करना है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कीजिए मैं डिवीजन के अंदर ये डबल नहीं लगाता हूँ, अगर मैं ये डबल नहीं लगाता हूँ तो मेरा रिजल्ट है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। आप रन करके देखिए प्रोग्राम को, आपका रिजल्ट क्या आएगा? डिवीजन का 0 आ गया। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए डिवीजन का, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग का मतलब है टू कन्वर्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा डबल। तो ए जो वेरिएबल है उसको अपन ने डबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आपका जो आंसर हो क्या आ गया? 0, सॉरी कंपाइलर का है इसलिए आपका रिमाइंडर बाय 3 और देन परसेंटेज f रन दिस प्रोग्राम। सो -NaN दिखा रहा है, ये कंपाइलर का कुछ इश्यू हो रहा है। बाकी रिजल्ट क्या आएगा? -4 रिमाइंडर बाय, अगर आप 3 से करेंगे तो 1.333 आपके पास में रिजल्ट वो जनरेट होगा, ओके। तो क्लियर है आपके पास में ये पूरा पार्ट? यहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, रिमाइंडर और देन डिवीजन, ये 4 अपन केस डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस के साथ में। बताएं कोई इश्यू इसके अंदर? यस और नो? नो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ फंक्शंस के रिगार्डिंग। तो फाइल देन न्यू void main, यहाँ से मैंने एक फंक्शन कॉल करा है और इस फंक्शन को अपन लिखा, और यहाँ पर मैंने एक स्टैटिक इंट x एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, x में प्लस प्लस किया, एंड देन इंट f x इज इक्वल टू %d, कोमा x की वैल्यू मैंने प्रिंट करी, और यहाँ पर फंक्शन को मैंने 4 टाइम कॉल करा है, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ फाइल को, WAE 110.c। According to you, what will be the result for this function? I have declared one static variable. According to you, what will be the result? Just tell. 1, 2, 3, 4. So this one is correct. Alter F4, you can check x equals to 1, 2, 3, and 4. Now suppose I write it as int x is equals to 0. Now what is the result? No need to declare the prototype because by default function return type is integer. Okay, function's return type is integer. 118 has right error as we have to declare prototype above main. प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना जो फंक्शन है ना उसकी रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट क्या है? इंटीजर। और
इंटीजर रिटर्न टाइप को अपन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप भी इंट नहीं लिखा और प्रोटोटाइप भी डिक्लेयर नहीं करी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वॉइड लगा देता तो उस केस में ये मिसमैच कर देता। अगर मैं इसको लगाता हूँ प्रोग्राम को तो यहाँ पर क्या दे रहा है, टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होती है वो किस टाइप की होती है, इंटीजर। बाय डिफॉल्ट फंक्शन रिटर्न टाइप इज int, ओके। बट यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, वॉइड कर दिया, तो इसलिए टाइप मिसमैच आ गया। लेकिन अगर मैं वॉइड नहीं लिखता हूँ और इंट लिखता हूँ तो मेरा फंक्शन चलेगा, ठीक है। और आउटपुट आपको दे देगा 1 2 3 सॉरी 1 1 1 1, क्योंकि अपन ने यहाँ पर int यूज करा है। ये आपका एक लोकल वेरिएबल हो गया। अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल यूज करता हूँ तो स्टैटिक वेरिएबल का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू परसिस्ट करती है ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। स्टैटिक वेरिएबल्स वैल्यू परसिस्टेंट ड्यूरिंग फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल में परसिस्ट करती है, इसलिए उसकी वैल्यू जो आपके पास में चेंज होकर आई है वही उसकी परमानेंट वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद में वापस से चेंज होगी, फिर अगेन चेंज होगी। तो अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक लगाता हूं तब तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4। अगर मैं स्टैटिक का यूज करता हूं तब तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4। अभी देखो आपके पास में गेट CS नहीं लगाया तो ये आउटपुट विंडो पे नहीं जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर गेट CS अप्लाई करा और देन कंट्रोल F9 किया, तो आप देखिए आउटपुट क्या है, 1 2 एंड देन 3 एंड 4, यस। और अगर मैं स्टैटिक अप्लाई नहीं करता हूं तो वेरिएबल क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा। तो मैंने \n किया, सेव करा प्रोग्राम को, कंट्रोल F9, तो 1 2 3 4 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक हटा के int करता हूँ सिंपल, तो उस केस में आपके पास में रिजल्ट आएगा 1 1 1 1, क्योंकि इसकी वैल्यू लोकल फंक्शन के अंदर 0 से हर टाइम पे इनिशिएट हो रही है। तो 075 140 012 सभी ने सही आंसर दिया है इसका। दिस इज द करेक्ट वन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें मैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस का केस लूंगा, लेकिन पहले मैं कॉल बाय वैल्यू का केस यहाँ पर ले रहा हूँ फंक्शन के थ्रू। वॉइड मेन, मैंने एक फंक्शन बनाया स्वैप v के नाम से और उसमें एक वेरिएबल लिखा a, b एंड इंटीजर a इज इक्वल टू 10 लिखा और b इज इक्वल टू 20 लिखा मैंने। इस फंक्शन के बाद में मैं \न्यू लाइन इन मेन फंक्शन a इज इक्वल टू %d एंड b इज इक्वल टू %d, a, b एंड देन गेट ch अप्लाई कर दूँ। और फंक्शन की डेफिनेशन में लिखते हैं अपन वॉइड स्वैप v इंटीजर a, इंटीजर b, and here I written t as a variable and t is equals to a. This is the rule for swapping, and b is equals to t, and here I written printf in function a is equals to %d and b is equals to %d, a, b. At the top you can define the prototype for the function. So void function name swap v integer, integer. This is the prototype declaration of the function. और ये आपके पास में हो गया फंक्शन कॉलिंग पार्ट। दिस इज द फंक्शन कॉलिंग पार्ट एंड दिस वन इज फंक्शन डेफिनेशन पार्ट। So according to you, what will be the result? Okay, I am just saving this file as WE 11.c. So 075 20 10 10 20 20 10 और 10 20, okay, 20 10 and 10 20. This one is the correct one. देखिए यहाँ पर आपके पास में कंसेप्ट यही है कि कॉल बाय वैल्यू के केस में अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होता है। इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू, if you change into formal parameter then actual parameter doesn't get changed. तो अगर आपके पास में a और b जो यहाँ पर है इस फंक्शन डेफिनेशन पे, वो क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। तो फॉर्मल पैरामीटर क्या हो गया, a एंड b। अगर आपने ऊपर से पास किया a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20,
इस फंक्शन से आपने ए की वैल्यू 10 पास करी, बी की वैल्यू 20 पास करी, तो यहाँ पर ए और बी में कॉपी हो गई 10 20। यहाँ पर आपने स्वैपिंग करी तो 20 और 10 आएगा इस वाले ब्लॉक के अंदर, लेकिन जैसे वो ऊपर जाएगा तो उस केस में इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू डिफाइंड थी वो क्या थी 10 20, और उसमें को आपने स्वैप करने के बाद में 20 और 10 हो गया। लेकिन जैसे वो ऊपर गया तो उसकी वैल्यू जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है वो क्या है 10 और 20 है, तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को तो आंसर आपके पास में क्या आ गया, इन फंक्शन a इक्वल टू 20 और देन b इक्वल टू 10, तो सबसे पहले 20 और 10 प्रिंट होगा, और मेन फंक्शन के अंदर क्या आएगा a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, यानी एक्चुअल जो वैल्यू वो आपकी चेंज नहीं हुई है। तो कॉल बाय वैल्यू के केस में अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर कॉल बाय एड्रेस की अगर अपन बात करते हैं तो कॉल बाय एड्रेस के केस में एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपन को, उसमें मुझे पॉइंटर्स का यूज करना पड़ेगा। तो पॉइंटर्स का यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे छोटा सा एग्जांपल लेना है पॉइंटर्स का। यहाँ पर पॉइंटर इज व्हाट, पॉइंटर इज ए स्पेशल वेरिएबल which is used to store the address of another variable। उसके लिए आपको एक वेरिएबल लेना a, उसको मैंने 10 से इनिशिएट करा। पॉइंटर के लिए आप स्टार का यूज करेंगे, स्टार एंड देन p। तो जब भी आप स्टार का यूज करते हैं तो आपका पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट होता है। पॉइंटर जब भी आप डिक्लेयर करते हैं उसे अपन यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि सिंगल ऑपरेंड के साथ में अगर आप यूज करते हैं तो उसे अपन यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या हुआ, एड्रेस ऑफ a, यानी आपने a का जो एड्रेस है वो p वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं a वेरिएबल लेता हूं 10, उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। मान लीजिए कि वेरिएबल a उसकी वैल्यू क्या है 10 और इसका एड्रेस मान लेते हैं 65520 इसका एड्रेस है, और p मेरा एक वेरिएबल है, उसके पास में आपने एड्रेस क्या रखा है इसका 65520 इसका एड्रेस रखा, और खुद का एक एड्रेस मान लेते हैं कि लेट सपोज 65524 इसका एड्रेस जनरेट हुआ लेट सपोज। तो p क्या है आपके पास में, एक वेरिएबल है जो होल्ड कर रहा है किसका एड्रेस, a का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, प्रिंट f %d, अगर a की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो a की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। प्रिंट f %d, अगर मैं एड्रेस ऑफ a प्रिंट करता हूँ तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 65520 आपका आंसर होगा एड्रेस ऑफ a। प्रिंट f %d, और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ p, तो p मीन्स एड्रेस ऑफ a, तो 65520, देन प्रिंट f %d, देन एड्रेस ऑफ p अगर आपको प्रिंट करना है देन यू कैन राइट 6552, देन प्रिंट f %d, इफ यू राइट स्टार ऑफ p तो अपन लिख सकते हैं 10। तो यहां पर जो एड्रेस ऑपरेटर है उसे अपन कहते हैं रेफरेंशियल ऑपरेटर, रेफरेंशियल ऑपरेटर टू फाइंड द एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। वन इज स्टार ऑपरेटर जिसे आप कहेंगे डी रेफरेंशियल ऑपरेटर, डी रेफरेंशियल ऑपरेटर टू गेट द वैल्यू एट पर्टिकुलर एड्रेस। Hello? Address operator is referential operator and star operator is, so if you use address you can use address operator, and for dereferential operator you can use the star operator. Okay, so these are the, so value of a equals to 10, address of a equals to 65520, p is equals to 65522, so 20, address of p 65524 एंड स्टार p का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वैल्यू क्या है। तो इसको आप रेफर करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टार अपनी जगह पे, p के पास में क्या एड्रेस ऑफ a, तो स्टार एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या a, और उसकी वैल्यू क्या हो गई 10। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आएगा 10, इसका आंसर आएगा स्टार p का। तो अगर मैं इसको कॉल बाय एड्रेस का केस लेता हूं यहाँ पर, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं,
उसमें क्या होगा कि अगर आप कॉल बाय एड्रेस वाले केस में क्या होगा, अगर फॉर्मल पैरामीटर में आप चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इसको फाइल पे क्लिक करा एंड देन न्यू पे क्लिक करा, देन मैंने void swap एड्रेस के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर a इंटीजर स्टार। देन void मेन फंक्शन अपन ने डिफाइन करा, इंटीजर a इक्वल टू 10 लिखा मैंने, b इक्वल टू 20 एंड देन स्क्रीन क्लियर clr scr, देन swap a b, then printf a is equal to percentage d and b is equal to percentage d comma a comma b and get ch. And in function definition you can write void swap a int star a int star b, and here you can write int t, the variable t is equal to star of a is equal to star of b is equal to t, and here you can write a is equal to percentage d and b is equal to percentage d comma star of a comma star of b. What is the output of this question? Just tell. What is the output? ये आपके पास में एक एग्जांपल हो गया। आई विल जस्ट टेल डबल पॉइंटर का क्या यूज है वो भी बता रहा हूं अभी। पहले आप इसका देख लीजिए कि अगर मैं इस सिंगल पॉइंटर का यूज करता हूं तो क्या होगा इसका आउटपुट। ठीक है, इंट स्टार देन इंट स्टार, सिंगल पॉइंटर लिया अपन स्टार ऑफ ए और देन इंटीजर स्टार ऑफ बी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 20 10 और देन 20 10। ओके, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो आंसर क्या आएगा 20 10 और 20 10, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है पैरामीटर मिसमैच। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी पास करना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्टली ए और बी पास करता हूँ तो एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को और आउटपुट देखेंगे तो ए की वैल्यू भी कितनी आ रही है 20 आ रही है, बी की वैल्यू भी कितनी बी की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। ठीक है, और स्वेपिंग करने के बाद में भी 20 और देन 10 आपको डिस्प्ले कर रहा है, दोनों ब्लॉक में आपके पास में 20 और 10 आ रहा है। ये 20 और 10 क्यों आया, क्योंकि अपन ने क्या करा है उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो वेरिएबल्स था उसकी वैल्यू को अपन ने चेंज कर दिया। तो इस वाले ब्लॉक के अंदर भी जो मैंने अभी सेलेक्ट करा है, इस वाले ब्लॉक के अंदर भी ये 20 और 10 प्रिंट करेगा, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके अंदर भी 20 और 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये कॉल बाय एड्रेस का केस हो गया। तो कॉल बाय वैल्यू के केस में अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर चेंज नहीं होता है, और कॉल बाय एड्रेस के केस में अगर आप फॉर्मल पैरामीटर में चेंज करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब किसने पूछा व्हाट इफ वी यूज डबल पॉइंटर्स, अगर डबल पॉइंटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो डबल पॉइंटर क्या होता है, जैसे एक वेरिएबल लिया मैंने a इक्वल टू 10 और एक सिंगल पॉइंटर लिया स्टार p और एक डबल पॉइंटर लिया स्टार q, p इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ a एंड q इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ p, एड्रेस ऑफ p। यानी डबल पॉइंटर क्या करता है, सिंगल पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करता है, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ सिंगल pointer variable. Okay, so let's suppose you can just declare variable a, value is 10, and let's suppose address is 1000 and one variable is p and it holds the address of a 1000, and let's suppose the address of p is equals to 1002, and if I take q, and what is the value of q, it holds the address of p, so 1002, and here you can take 1004. Now let's suppose this is the diagram for the question and I want to print a value, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। प्रिंट f, अगर मुझे p की वैल्यू प्रिंट करनी है परसेंटेज u के साथ में, u यूज करना पड़ेगा एड्रेस को प्रिंट करने के लिए, हमेशा परसेंटेज u का यूज करेंगे अनसाइंड वैल्यू, तो एड्रेस हमेशा पॉजिटिव के अंदर होते हैं। तो इसको अगर p लिखता हूं तो उसका एड्रेस आ जाएगा, ये तो अपन ने सपोज किया कि 1000 आएगा जो एड्रेस ऑफ a है, तो p के पास में क्या होता है, p के पास में एड्रेस ऑफ a, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। प्रिंट f, अगर मैं लिखता हूं q इज इक्वल टू परसेंटेज u, देन q की वैल्यू प्रिंट करना है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 1002 आपके पास में q के अंदर वैल्यू आएगी, क्योंकि q के अंदर क्या आपके पास में एड्रेस ऑफ p है, तो p का एड्रेस क्या है 1002। अब यहां पर अगर आप यूज करते हैं स्टार p,
तो इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो स्टार पी के पास में क्या है, एड्रेस ऑफ ए, स्टार एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। अगर मैं डबल पॉइंटर यूज करता हूं, स्टार स्टार क्यू मैंने लिखा, तो स्टार स्टार को आप एज इट इज रखें, क्यू के पास में क्या है, एड्रेस ऑफ पी, एक एड्रेस एक स्टार कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या आपके पास में स्टार पी। अब पी के पास में क्या है, एड्रेस ऑफ ए, स्टार एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या ए, तो फाइनली ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी जब आप डबल स्टार क्यू से इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 10, क्योंकि वो पॉइंटर से पॉइंटर लेके और वैल्यू फाइंड आउट करेगा। ओके, सो 040 आपने पूछा कि डबल पॉइंटर्स को यूज करेंगे तो क्या होता है, डबल पॉइंटर्स अपन इस तरह से यूज कर सकते हैं। इज दिस क्लियर 040? ठीक है, तो डबल पॉइंटर क्या करता है, एक सिंगल पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करता है, तो सिंगल पॉइंटर का एड्रेस कंटेन करेगा तो उसके लिए मुझे एक स्टार और लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास में डबल पॉइंटर है लेकिन मैंने उसको ट्रिपल पॉइंटर के साथ में रेफरेंस कर दिया तो मुझे एक एड्रेस की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सपोज ट्रिपल एड्रेस लेता हूँ, यानी ट्रिपल स्टार करता हूँ, जस्ट ए मिनट, अगर मैंने यहाँ पर लिखा स्टार 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 आर कर दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आर के अंदर एड्रेस ऑफ क्यू स्टोर करना पड़ेगा। अब इसके थ्रू मुझे अगर वैल्यू फाइंड आउट तो मुझे ट्रिपल आर का यूज करना पड़ेगा। अब ट्रिपल आर को कैसे सोल्व करेंगे आप, स्टार स्टार स्टार, आर के पास में क्या है, एड्रेस ऑफ क्यू है, तो एक एड्रेस से एक स्टार कैंसिल आउट हो गया तो बच गया क्या, स्टार स्टार क्यू बच गया। अब क्यू के पास में क्या है, क्यू के पास में है एड्रेस ऑफ पी, तो एड्रेस ऑफ पी लिखा तो स्टार एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो गया तो बच गया क्या, स्टार पी। और पी के पास में क्या है, एड्रेस ऑफ ए, तो स्टार एड्रेस कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से प्रिंट स्टेटमेंट में स्टार पी लिखते हैं, डबल स्टार क्यू लिखते हैं, ट्रिपल स्टार आर लिखते हैं, तो वैल्यू आपके पास में सेम आएगी। तो स्टार का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है, ठीक है, और एड्रेस का मतलब उसका एड्रेस आपके पास में क्या जनरेट हो रहा है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। कल अपन पॉइंटर्स के रिगार्डिंग, पॉइंटर्स को अपन प्रोसेस करेंगे, उसके अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसको एरेज के साथ में बाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, what if we don't give address to pointer, instead we give just assign an integer value and then print star p। आप कह रहे हैं कि आपको पॉइंटर के अंदर what if we don't give address to pointer, instead we give just assign an integer। यस, अनम्यूट करिए आप, अनम्यूट कर लीजिए आप 04। सर एक्चुअली मेरा डाउट ये है कि अगर जैसे कि अभी हम लोग एड्रेस दे रहे हैं ना पी को, स्टार पी को, अगर उसकी जगह हम लोग सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू से 1 0 10 20 ऐसे कुछ हम लोग डाल दें, उसके बाद हम लोग स्टार पी उसको प्रिंट करें, तो फिर वो गार्बेज वैल्यू देगा क्या? देखो आपने क्या कहा, स्टार पी एक मेरा वेरिएबल है ना। यस सर। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए, और उसको मैंने दिया 10 से इनिशिएट करा ना। नहीं सर, ए हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको स्टार पी इक्वल्स टू 10 कर रहे हैं। स्टार पी इक्वल्स टू आपने 10 दे दिया ना, और देन आपने प्रिंट एफ किया ए इज इक्वल टू किस, केवल पी प्रिंट करना है या स्टार पी प्रिंट करना है? स्टार पी दोनों। ओके, सिंपल पी भी प्रिंट करना है। यस सर। देखिए मैं इसको आपका डाउट सोल्व करता हूँ, एक मिनट पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, WAE 12.c। अब जैसे रन करिए प्रोग्राम को ना, तो जैसे आप रन कर रहे हैं तो क्या दे रहा है आपको, गार्बेज वैल्यू दे रहा है ना 8292। ठीक है, अगर मैं इसको परसेंटेज यू करता हूँ, ये बेसिकली आपने वैल्यू असाइन करी है उसको। ठीक है, 8292 ये एक एड्रेस आ रहा है, और अगर मैं सिंपल पी करता हूँ तो आपको क्या दे रहा है, 10 दे रहा है। तो पी के पास में क्या, आपके पास में वैल्यू है। ठीक है, तो सर ये 10 का एड्रेस स्टार पी पे हमें गार्बेज वैल्यू इसलिए दे रहा है ना वो। हाँ, ये देखो पी के अंदर क्या हो गया, एक 10 है ना वो एज ए एड्रेस यूज हो रहा है, 10 है ना वो एज ए एड्रेस यूज हो रहा है। ठीक है, ओके सर। और स्टार पी के अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि पी के अंदर पी के अंदर फिर वो हो जाएगा ना 10 जो एड्रेस है उसके ऊपर को जो वैल्यू होगी वहां पे, सपोज कोई अगर वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू। वो गार्बेज होगी, वो गार्बेज दिखा रहा है ना यहाँ पर। अभी 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने स्टार पी को प्रिंट करा। ठीक है, और अगर इस पी को मैं कोई एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने 10 की जगह मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करा इंटीजर ए इक्वल टू 10 लिखा। अब इसको मैंने एड्रेस ऑफ ए लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मेमोरी एलोकेट हो गई। यस सर।
अब अगर आप p लिखते हैं तो क्या आ रहा है 65524 आ रहा है। 65524 क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप देखते हैं एक वेरिएबल आपने a असाइन करा, उसका भी आपको एक एड्रेस मिलेगा, और एक वेरिएबल p असाइन करा, उसका भी आपको एक एड्रेस मिलेगा। तो मैं a का भी एड्रेस प्रिंट करता हूँ, p का भी एड्रेस प्रिंट करता हूँ। देखना एड्रेस ऑफ a और p का एड्रेस, आप रन करिए प्रोग्राम को, तो आप देखिए 65524 आ रहा है और p के पास में भी 65524 आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है p के पास? क्योंकि आपने a का एड्रेस दिया है। और लेकिन अगर मैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ p प्रिंट करता हूँ, एक और वेरिएबल प्रिंट करते हैं अपन, एड्रेस ऑफ p इज इक्वल टू %u, और देन यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑफ p लिखा, तो भी आपके पास में एड्रेस प्रिंट होगा, लेकिन वो p का एड्रेस प्रिंट होगा। तो p का एड्रेस कितना आ रहा है? 65522 आ रहा है। ठीक है, तो ये एड्रेस आपके पास में असाइन होते हैं। और अगर आप %u की जगह %d लिखते हैं ना, तो ये क्या करता है, साइक्लिक प्रॉपर्टी जो होती है ना, साइक्लिक प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये -40 लेके आएगा। आई बात समझ में? और सर साइक्लिक प्रॉपर्टी, अच्छा ओके ठीक है, हाँ ओके यस सर, -32768 के बारे में -32766 से होता है ना। यस सर यस सर यस सर, उसे अपन साइक्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं पॉइंटर्स के रेफरेंस में। हर वेरिएबल साइक्लिक नेचर में काम करता है। ओके सर, थैंक यू। आ रही बात आगे समझ में पॉइंटर्स का कंसेप्ट? ठीक है, यस सर। तो अपन इसको चेक करेंगे और भी इसके अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और आ रहा है 62, इफ वी असाइन एन एड्रेस व्हिच इज ऑलरेडी इन यूज व्हाट विल हैपन। एड्रेस से वो कंपाइलर के द्वारा असाइन किया जाता है 062, एड्रेस से वो कंपाइलर के द्वारा असाइन किया जाता है। अगर आप एड्रेस को मैनिपुलेट कर लेते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस पॉइंटर्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे ह्यूज पॉइंटर होता है और फार पॉइंटर्स होते हैं, और प्लस नियर पॉइंटर एंड वाइल्ड कार्ड, जो वाइल्ड पॉइंटर्स होते हैं उनका यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप असाइन नहीं कर सकते एड्रेस। व्हाट विल हैपन इफ वी प्रिंट *p इन दिस केस? इन दिस केस तो आपके पास में वैल्यू आएगी ना 10। उस वाले केस में अपन ने एक वैल्यू असाइन करी थी डायरेक्टली p को। अगर आप यहाँ पर *p को प्रिंट करते हैं ना, *p की वैल्यू, तो p के पास में क्या एड्रेस ऑफ a है। अगर मैं %d करके *p को प्रिंट करता हूं तो 10 रिप्रेजेंट करेगा। न्यू लाइन करके देख लीजिए आप, तो मैंने \n करा और कंट्रोल F9 करा। नाउ चेक दिस, तो *p की वैल्यू क्या आ रही है? 10 आ रही है। प्रीवियस केस में अपन ने *p = 10 डायरेक्टली असाइन कर दिया, यानी p को अपन ने 10 एज ए एड्रेस दे दिया। ठीक है, और उस *p को करेंगे तो *p का मतलब उस 10 एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है। ठीक है, ये अपने डायरेक्टली 10 एक सिंपल एक पॉइंटर को असाइन कर दिया कि एड्रेस। जीरो 62 समझ में आ गया आपको? 039 आपका भी सेम डाउट है? अगर अनम्यूट करना आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो आपको। 039 सर मेरा डाउट है कि जैसे 10 उसमें एड्रेस की तरह यूज हो रहा है या फिर 10 एज ए 10 वैल्यू की तरह जा रहा है? नहीं, 10 एज ए एड्रेस की तरह यूज हो रहा है। तो सर 10 एज ए एड्रेस यूज हो रहा है तो अपन p प्रिंट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू क्यों प्रिंट कर रहा है? अच्छा, वो 10 एड्रेस ये p का। हाँ, तो p का एड्रेस हो गया ना, *p करेंगे तब उसकी वैल्यू आएगी जो गार्बेज है। और सर वो अगर वो 10 एड्रेस कोई और यूज करके रखा हो तो p क्या करेगा फिर? डायरेक्टली अपन जैसे इसको आपको 10 मिला ना, तो 10 आपके पास में है, अगर उस मेमोरी के ऊपर जो राइट होगा तो वो प्रिंट कर देगा। उस 10 लोकेशन के ऊपर जो एड्रेस होगा ना उसको प्रिंट कर देगा। जैसे सपोज कीजिए आपके पास में 3 चेयर है, ठीक है, अब एक पर्सन ने उसको अलोकेट कर रखा है तो उसको यूज नहीं कर पाएगा। और अगर उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर वैल्यू होगी तो उसको प्रिंट कर देगा। एड्रेस यही सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे कोई एक बड़ा एरे है, उस एरे के अंदर कोई एक एड्रेस है जो यूज हो रखा है, वो एड्रेस अगर p यूज करने पे आ गया तो, क्योंकि p तो अपन डायरेक्टली दे रहे हैं वैल्यू। वैसे प्रोसेस में आता नहीं है, लेकिन अगर अपन पॉइंटर्स को मैनिपुलेट करते हैं ना तो उसकी वैल्यू अपन मैनिपुलेट करते हैं कि उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है। ठीक है, तो डायरेक्टली तो आपके पास में गार्बेज वैल्यू दे रहा है क्योंकि आपने 10 को असाइन करा, तो 10 आपका एक एड्रेस है, उस पर आपकी गार्बेज वैल्यू आ गई। अब आपने खुद से कोई एक एड्रेस लिया, उसके ऊपर आप वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो वो लोकेशन पे जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने एक a वेरिएबल बनाया, हाँ, उसको आपने असाइन करा, मैंने उसका एड्रेस देख लिया क्या है, हाँ, और उसको दूसरे पॉइंटर के अंदर उस एड्रेस से इनिशियलाइज कर दिया दूसरा पॉइंटर। हाँ, तो एक बार मैं बताता हूँ आपको, आप जैसा कर रहे हैं ना, मैं आपको पूरा डायरेक्टली डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ आपको
कि आपका जो वेरिएबल है, आप जैसा कह रहे हैं, ठीक है, आपका एक वेरिएबल है ए, ठीक है, हाँ और इसका मैं एड्रेस प्रिंट कर लेता हूँ। परसेंटेज यू से मैंने एक एड्रेस प्रिंट कर लिया, ये मेरा एक एड्रेस हो गया परसेंटेज यू, एंड देन एड्रेस ऑफ ए मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं इस एड्रेस को चेक कर लेता हूँ कि मेरा एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये मैंने रन करा और देन मेरा एड्रेस आ गया 65524, मेरा एक एड्रेस आ गया ना। हाँ अब मुझे क्या करना है, पॉइंटर वेरिएबल लेना है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने 65524, ठीक है ना, अल्टर F5 करके देखा, 65524 मैंने साइन कर दिया, ठीक है। हाँ। अब आप क्या कहते हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि स्टार पी पे मैंने कुछ भी किया, इस पॉइंटर को देखो पहले मैं पी की वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, है ना। तो आपको पी को परसेंटेज यू करा और कोमा पी लिखा मैंने ना, तो पी पे गार्बेज आएगा, नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्जन, ओके। टू फोर इंट स्टार, ठीक है, तो 65524 आ गया पी के पास में, हाँ ठीक है। और अब इसके ऊपर स्टार पी करते हैं अपन, तो वो गार्बेज देगा, स्टार, एक मिनट, स्टार पी इज इक्वल टू परसेंटेज यू करा मैंने, एंड देन स्टार पी। रन करिए प्रोग्राम को, क्या कह रहा है, स्टार पी के पास में कुछ 10 आ रहा है, ठीक है। वो 10 क्यों आ रहा है वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपने 65524 पे 10 स्टोर कर रखा है, ओके एज इट इज दे रहा है। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, आपने तो डायरेक्टली उसकी लोकेशन को पुट कर दिया ना, और आपने वैल्यू मॉडिफाई कर दी, तो आप ये चेक करिए 100 आपका आंसर आना चाहिए, आ गया 100 आंसर। तो आपने पॉइंटर्स को लिया और उसी को आपने, उसी मेमोरी को आपने रेफरेंस कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, आपके पास में एक नॉन पोर्टेबल पॉइंटर की दिक्कत आ रही है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर इसको इनिशिएट करा डायरेक्टली 65524 से, क्योंकि आपने क्या किया, स्टार पी में 65524 स्टोर करा, तो ये क्या दे रहा है, नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्जन का इशू दे रहा है, क्योंकि इस इंटीजर वैल्यू को मुझे इंट स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये बड़ा एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे तो ये एरर हट जाएगी, और देन आपका करेक्ट रिजल्ट है वो डिस्प्ले कर देगा। एनी अदर आंसर, एनी अदर डाउट? नो सर। हो गया सॉल्व? किसी और को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सभी को समझ में आ गया? आपको मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं जो आपको करना है, असाइनमेंट बेस्ड ऑन फंक्शन। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जैसे मेरा सम इज इक्वल टू, मैंने लिखा वेरिएबल 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन तो आपको ये करना है। देन राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग pyramid using function a b c a b c d e d a b c d e e b c e a b c b a b a b c d b c d e Question number 3, write a program to
input any string from the user and do the following task. Number 1, find the length of the string. Use pointer concept. Second, reverse of the given string. Third, concatenate to given string. Fourth, copy write a program to find the lucky number of the given number. पास में इनपुट है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरा आउटपुट जो होगा वो क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, इनका सम करने पे कितना आएगा 15 + 6 21 7 28 आ गया ना 28। उसके बाद में इन 28 का वापस से आपको समेशन करना है एक एक डिजिट का, उसका रिजल्ट कितना आ गया 10, उस 10 का वापस से आपको समेशन करना है, तब तक समेशन करना जब तक कि एक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए, वो आपका लकी नंबर होता है। ठीक है, कोई भी नंबर आप यूजर से इनपुट करेंगे उस नंबर को जब तक सिंगल डिजिट पे सम नहीं आ जाए तब तक आपको प्रोग्राम को रन करना है और लकी नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे लेट सपोज मेरा दूसरा एक नंबर मैंने लिखा इनपुट 5598, ये मेरा नंबर है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 5 + 5 कितना हो गया 10 + 9 19 + 8 27, 27 का सम करा तो कितना आ गया 2 + 7 = 9, तो इस लकी नंबर क्या हो गया 9 हो गया। एंड लास्ट, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग pyramid using function 1 2 3 5 7 11 13 17 19 and 23। ठीक है, ये 5 प्रॉब्लम्स है जो आपको करनी है। ठीक है, मैं एक एक प्रॉब्लम को आपको बताता हूँ। इसमें तो क्या करना है आपको फैक्टोरियल फंक्शन बनाना पड़ेगा एक अलग से और देन उसका समेशन निकाल के आपको रन करना है प्रोग्राम को। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा, पिरामिड आपको इस ट्राइंगल के फॉर्म में प्रिंट करना है, यानी आपको एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन के थ्रू आपका एक ट्राइंगल है वो प्रिंट होना चाहिए, लॉजिक आपको लगाना है। थर्ड फंक्शन में मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसमें लेंथ फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की, रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर फाइंड आउट करना है, कॉन्केट करना है, कॉपी करना वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में मुझे लकी नंबर फाइंड आउट करना है, और फिफ्थ नंबर जो मेरा क्वेश्चन है उसमें मुझे पिरामिड प्रिंट करना है इस टाइप का। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस आपको इंप्लीमेंट करनी है।